جو موضوع مجھے ملا ہے پردہ کیسا ہو، شرعی پردہ کیا ہوتا ہے، اس موضوع کے دوستوں میں نے دو پہلو بنا لیے ہیں۔ شرعی پردہ آپ مجھ سے سنیں گے، لیکن اس سے پہلے دوستوں پہلے یہ پہلو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ اگر شرعی پردہ نہ ہو، عورت بے لباس ہو جائے، عورت اگر پردے سے نکل کر عریاں ہو کر اگر سڑکوں پہ آ جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ پہلے دوستو آپ یہ چیز سنیں گے مجھ سے، اور اس کے بعد سنیں گے کہ اس نقصان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کون سا اسباب ہے جو اس اسباب کو اپنا کر ہم اس نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ سورہ یوسف کی میں نے آیت رکھی آپ لوگوں کے سامنے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب مصر کے اندر اپنے آپ کو ایک گرے ہوئے ماحول میں پایا، مصر کی چند بے حیا اور بے شرم عورتیں ان کو اپنے دامے فریب میں پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی، اس وقت یوسف علیہ السلام نے خلوص دل کے ساتھ دعا کی تھی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ مصر کی عورتیں جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو پھر میرے لیے قید خانے کی زندگی بہتر ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اے اللہ یہ مصر کی عورتیں جس دامے فریب میں مجھے پھنسانا چاہتی ہیں، اگر تو نے میری حفاظت نہ کی تو میں بھی انسان ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف مائل ہو کے نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ، چونکہ خلوص دل کے ساتھ دعا کی تھی حضرت یوسف نے، ہم نے ان عورتوں کے مکر سے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، اور اللہ رب العالمین دعاؤں کو سننے والا، دلوں کے ارادوں اور دلوں کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ حضرات موجودہ دور میں جو بڑے بڑے فتنے ہیں، ان فتنوں میں ایک عظیم فتنہ ہے عشق و محبت کا فتنہ۔ اور دوستوں میں بلا مبالغہ یہ بات اس مسجد میں کھڑے ہو کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج نوجوانوں کی میجورٹی ایسی ہے، اکثریت ایسی ہے جو شادی سے پہلے کسی نہ کسی کے معاشقے میں مبتلا ہے، اور انسان فی نفسی دوستو شہوت کے معاملے میں بڑا کمزور واقع ہوا ہے، جنسی شہوت کے معاملے میں انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے، اور اسی کمزوری کا اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ذکر کیا ہے۔ دیکھیے اللہ نے عورتوں کے نام سے ایک سورہ اتاری اور اسی سورہ میں انسان کی کمزوری کا ذکر کیا، فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے۔ کس اعتبار سے، کس حیثیت سے؟ فکری اعتبار سے نہیں، جسمانی اعتبار سے نہیں، عقلی اعتبار سے نہیں، یہاں اللہ نے جس کمزوری کا ذکر کیا ہے، آپ اس سے پہلے والی آیت پڑھیے، اس کمزوری کا آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ کس کمزوری کا اللہ نے ذکر کیا۔ فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ شہوت کے معاملے میں، جنسی شہوت کے معاملے میں انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے، بڑا کمزور واقع ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس زمین پر مردوں کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ میں نے چھوڑا ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اس زمین پر مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ مرد عورت کے لیے فتنہ، عورت مرد کے لیے فتنہ ہے، مرد کو عورت سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور عورت کو مرد سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مرد عورت جہاں پر بھی اکٹھے ہو جائیں، چاہے کتنے ہی نیک مقصد کے تحت کیوں نہ اکٹھے ہوں، ان کا یہ ملنا کب فتنہ بن جائے، کیسے فتنہ بن جائے کہا نہیں جا سکتا۔ عورت مرد کے لیے فتنہ اور مرد عورت کے لیے فتنہ، اس لیے آپ دیکھیے شریعت نے مرد عورتوں کے درمیان بڑے فاصلے رکھے ہیں، بڑے فاصلے رکھے ہیں، لیکن آج کا انسان، آج ہمارا معاشرہ ان فاصلوں کو کم کرتا جا رہا ہے۔ کیسے؟ کبھی تعلیم کے نام پر، کبھی تہذیب کے نام پر، کبھی کلچر کے نام پر، کبھی مساوات و برابری کے نام پر آج ہم ان فاصلوں کو کم کرتے جا رہے ہیں، اور نتیجے میں دنیا شہوتوں کا بازار بنی ہوئی ہے، جدھر نظر اٹھاؤ شہوتیں ہی شہوتیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا شہوتوں کا بازار ہے۔ اور تھوڑی بہت جو کمی رہ گئی تھی نا زنا کے اس کلچر کو عام کرنے میں، بے حیائی کو پھیلانے میں جو تھوڑی کمی رہ گئی تھی، اس چیز
نے आ कर उस कमी को पूरा कर डाला, सोशल मीडिया ने आकर उस कमी को पूरा कर डाला। वल्लाहि अज़ीम मैं कहता हूँ, बाहमी राब्ते की जो राहें लड़की और लड़के को मिलाने में जो इस मोबाइल ने काम आसान किया है, जो इस सोशल मीडिया ने काम आसान किया है, इस सोशल मीडिया के आने के बाद माँ बाप के भी बस की बात न रही कि लाख निगरानी के बावजूद ये जान सके कि हमारा लड़का किससे बात कर रहा है, हमारी लड़की किससे चैटिंग कर रही है, किससे बात कर रही है। सोशल मीडिया के आने के बाद बदकारी का सैलाब आ चुका है हमारे मुआशरे में, जिना के कल्चर का बेहयाई का सैलाब आ चुका है, और हमारी नौजवान नस्ल माँ बाप के एहतसाबी नजरों से बच निकलने में कामयाब है। फेसबुक पे दोस्त बनाना, व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, रात में लड़कियों का लड़कों के साथ घंटों घंटों बातें करना, हाँ रात में हमारे लड़कों का लड़कियों के साथ चैटिंग करना, मुझे माफ कीजिएगा ये घर घर की कहानी है, ये घर घर की कहानी है। और बात अगर नौजवानों की होती तो कुछ समझ में आता, लेकिन दोस्तों हैरान करने वाली बात है कि नाबालिग बच्चों को आज देखकर हमें जो दोस्तों हैरान कर देने वाली चीज है, नाबालिग बच्चों के बारे में जो कुछ सुनने और देखने को मिलता है, नींदें हराम हो जाएंगी। नाबालिग बच्चे, ये जो आपकी स्कूल है ना, ये म्युनिसिपालिटी वाली है, ये आपकी सरकारी स्कूल, 12:30 बजे के बाद इस स्कूल के बाहर खड़े हो जाइए आप। मैंने इस स्कूल के बारे में अपने दोस्तों से सुना कि मौलाना इश्क और मोहब्बत का अड्डा बना हुआ है। हाँ, 12:30 बजे के बाद टपोरी लोग बाइक लेकर नाबालिग बच्चों को अपने बाइक पर बिठाकर, वालिदैन इसको जानती ही नहीं है, हाय 10 साल की उम्र में नाबालिग बच्चे मोहब्बत के खुतूत लिख रहे हैं, 11 साल की उम्र में 9 साल का बच्चा अपनी हम उम्र बच्चियों को छेड़ रहा है। ऐसा लगता है कि ये बालिग होने से पहले, ये बुलूगत से पहले बालिग हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये नाबालिग बच्चे जवानों की रविश पे चल पड़े हैं। और मुझे माफ कीजिएगा इस ताबीर पर भी कि हमारे ये स्कूल, हमारे मुआशरे में पाई जाने वाली ये कॉलेजेस, ये यूनिवर्सिटियां, ये इश्क और मोहब्बत के अड्डे बने हुए हैं। हमारा बच्चा इन स्कूल के अंदर जाकर कोई सबक पढ़े न पढ़े, इश्क का सबक जरूर पढ़ के आता है। हमारी बच्ची इन कॉलेजों के अंदर जाकर कोई सब्जेक्ट पढ़े न पढ़े, इश्क का सब्जेक्ट जरूर पढ़ के आती है। इसीलिए मैं कहता हूं, अल्लाह का वली है वो नौजवान, अल्लाह का वली है वो नौजवान जो इन कॉलेजों के अंदर पढ़ता है, इन स्कूलों के अंदर पढ़ता है और पूरे तालीमी मराहिल में इश्क और मोहब्बत की आलूदगियों से अपने आप को बचा के निकल आता है। तालीम खत्म कर ली, डिग्री ले ली, लेकिन किसी की जुल्फ का असीर न हुआ, ये अल्लाह का वली है नौजवान। और अल्लाह की वली है वो लड़की, अल्लाह की वली है वो लड़की जो है किसी स्कूल के अंदर पढ़ती है, किसी कॉलेज के अंदर पढ़ती है, लेकिन हिजाब के साथ पढ़ती है, पर्दे के साथ पढ़ती है और पूरे तालीमी मराहिल में अपने आप को इश्क और मोहब्बत के दाग और धब्बों से बचा के निकल आती है। अल्लाह की वली। आपको तकवे का सबूत कहां पर देना है? मस्जिद के अंदर तो थोड़ी आप तकवे का सबूत वहां पर देना होता है जहां बुराई के मौके हो। और स्कूल और कॉलेजों का जो माहौल बना हुआ है, हम मदरसे वालों से बेहतर तो आप लोग जानते हैं, कॉलेजों से निकल कर आए हैं, आप लोग जानते हैं इन कॉलेजों के अंदर जो जिना के कल्चर को फरोग मिल रहा है। ऐसे कल्चर और माहौल में अगर कोई अपने दीन और अखलाक और तकवे की हिफाजत कर ले जाए, मैं कहता हूं तकवे का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता, तकवे की इससे बड़ी दलील नहीं हो सकती। आप उठा के देखिए माजी के, हमारे माजी को, हमारे असलाफ की जिंदगियों को उठा कर देखिए। एक औरत की शर्म और हया का मैयार क्या था, एक लड़की की शर्म हया का मैयार क्या था। बाप जब अपनी बच्ची के लिए किसी लड़के को तलाश करता था, दीनदार लड़के को तलाश करने के बाद जब अपनी बच्ची से रजामंदी जानने की कोशिश करता, पूछता कि बेटी मैंने इन सिफात का हामिल लड़का तुम्हारे लिए तलाश किया है, बड़ा दीनदार है, बड़ा बाअखलाक है, क्या ये रिश्ता तुमको मंजूर है? लोगों शर्म इतनी थी, हया इतनी थी कि लड़की हाँ नहीं कह पाती थी, खामोश रह जाती थी। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, एक वली, एक सरपरस्त अपनी बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढता है और जब बच्ची की रजामंदी जानने की कोशिश करता है तो बच्ची हाँ नहीं कह पाती, खामोश रह जाती है। उसकी खामोशी को हम क्या समझे? इमाम कायनात ने कहा, इज़्नुहा सुमातुहा। क्या कहा?
اس کی خاموشی کو منظوری سمجھ کے قدم آگے بڑھا دو. اور اللہ کے بندو وہ حیا کی وجہ سے ہاں نہیں کہہ پا رہی ہے, وہ شرم کی وجہ سے ہاں نہیں کہہ پا رہی ہے. اس کی خاموشی کو منظوری سمجھ کے آگے بڑھا, قدم آگے بڑھاؤ. ایک شرم و حیا کا یہ معیار اور ایک شرم و حیا کا یہ معیار جو آج ہمارے معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. آج ہماری بچی نے اسکولوں کے اندر جا کے دیکھ لو, اپنی زندگی کا ہم سفر خود تلاش کرتی ہے. ان کالجوں کے اندر پڑھنے والی آج ہماری بچیاں اپنی زندگی میں جو اس کا ہونے والا شعور ہے اپنا من پسند کر کے تلاش کرتی ہے. کتنی گر چکی ہے اخلاق کے اعتبار سے, شرم و حیا کے اعتبار سے یہ لڑکیاں کتنی گر چکی ہیں. اور پھر خطے نظر اس کے کہ یہ لڑکا اس کے مناسب ہے, اس کے مطلب لائق ہے کہ نہیں, نہ اس کی مزاج کو دیکھا, نہ اس کے عقیدے کو دیکھا, نہ اس کی دینداری کو دیکھا, نہ اس کے اخلاق کو دیکھا, خود پسند کرتی ہے. ماں باپ کو ناراض کرتے ہوئے, ماں باپ ناراض ہوتے ہیں ہو جانے دو, خاندان والے ناراض ہوتے ہیں ہو جانے دو, سب کو ناراض کر کے خاندان سے فائٹنگ کرتی ہے, ماں باپ سے جھگڑا کرتی ہے اور بڑی ضد و ہٹ درمی کے ساتھ کہتی ہے اماں اگر کروں گی تو اسی سے کروں گی جس کو میں نے پسند کیا ورنہ مر جاؤں گی. کیا کہتی ہے؟ کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ مر جاؤں گی. کتنا گر چکی ہے عورت شرم و حیا کے اعتبار سے, کتنا گر چکی ہے. ایک شرم و حیا کا یہ معیار جو آپ سن رہے ہیں اور ایک شرم و حیا کا معیار جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شرمی کی حد ہو گئی, بے غیرتی کی حد ہو گئی. بعض جوڑوں کے عشق و محبت کے جب چرچے معاشرے میں عام ہوتے ہیں, بھاگ کے شادی کر لی, ان کا لو میرج تھا, بھاگ کی شادی کی. اب معاشرے میں عشق و محبت کے ان کے چرچے اس طرح ہوئے کہ بچے ہوئے, بچے بڑے ہو گئے. اب ان بچوں کو معاشرے بڑا ہونے کے بعد معاشرے والوں کی زبانی سننے کو ملتا ہے کہ تمہارے ابو اور امی کا جو رشتہ تھا وہ محبت کا رشتہ تھا, وہ لو میرج تھا, تمہارے ابو اور امی نے بھاگ کی شادی کی تھی. اللہ 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 استغفر اللہ. ہاں, جب بچے اپنے ماں باپ کے بارے میں معاشرے والوں کی زبان سے ایسا سنتے ہو, اب آپ سوچئے کہ ان بچوں کی تربیت پہ کتنا برا اثر پڑتا ہوگا. کیا یہ بچے اپنے ماں باپ کی روش پہ نہیں چلیں گے؟ آپ لوگ مجھے بتائیے. عشق ایک مرض, عشق ایک بیماری ہے, عشق ایک روگ ہے جو آئے دن انسان کو گھن کی طرح کھاتا رہتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں آئے دن جو خودکشی کی واردات ہیں یہ اسی عشق و محبت کی وجہ سے ہے. ایک لڑکے نے عشق کیا, ناکام ہو گیا, جا کے پنکھے سے لٹک گیا, خودکشی کر لی, یا کسی بلڈنگ سے اس نے چھلانگ مار دی. لڑکی نے محبت کی, ناکام ہو گئی, جا کے پنکھے سے لٹک گئی, خودکشی کر لی. یا میاں بیوی دونوں راضی تھے, ماں باپ راضی نہ ہوئے, خاندان والے راضی نہ ہوئے, دونوں نے مل کر خودکشی کر لی. عشق کی وجہ سے خاندانوں کا سکون برباد ہو چکا ہے. اسی عشق و محبت کی وجہ سے ماں باپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. علامہ حالی نے کہا تھا اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا, اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا, جس گھر میں سر اٹھایا اسے ڈبا کے چھوڑا. ایک طرف خودکشی کی واردات ہیں اور دوسری طرف نفسیاتی بیماریوں کی بہتات ہے, سائیکالوجیکل پرابلم. آپ دیکھیے یہ نوجوان لڑکا جو زنا کی روش پہ چل رہا ہے, یہ لڑکی جو زنا کی روش کو اپنائے ہوئے ہے, یہ زنا کی وجہ سے اندر سے اتنے بیمار ہو چکے ہیں, اتنی سائیکالوجیکل پرابلم کہ یہ لڑکے اور لڑکیاں حکیموں کے چکر لگا رہے ہیں, ڈاکٹروں کے چکر لگا. اللہ کی قسم انسان آج اس زنا کی وجہ سے اتنا بیمار ہے نا, ماضی میں کبھی اتنا بیمار نہ تھا, نہیں تھا اتنا بیمار. یہ زنا کی وجہ سے انسان بیمار ہوا ہے. یہ لڑکی جو عشق کر رہی ہے, جو زنا کے کلچر کو فروغ دے رہی ہے, جو زنا کی روش پہ ہے, یہ لڑکا جو زنا کے, صبح کو یہ پاؤڈر لگا کے نکلتے ہیں اور کاجل لگا کے آنکھوں میں نکلتے ہیں, یہ اوپر سے جتنے سجے اور سمرے لگتے ہیں نا, اندر سے اسی قدر کھوکھلے ہیں. اللہ کی قسم ان کی روح بیمار, ان کا جسم بیمار, یہ خود بیمار. امام کائنات نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط, لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم. کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس قوم میں زنا عام ہو جائے,
जिस कौम में बेहयाई आम हो जाए, आपने फरमाया ऐसी कौम पर अल्लाह प्लेग का मर्ज, ताउन का मर्ज मुसल्लत करता, हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फशा फीहिम अत्ताउन और वल औजा अल्लती लम तकुन मज़त फिहा, और ऐसी ऐसी बीमारियां अल्लाह ऐसी कौम को देता है जिनकी बीमारियों के बारे में उनके आबा व अजदाद ने कभी सुना तक नहीं था। जिन बीमारियों के बारे में उनके आबा व अजदाद, एड्स के बारे में कौन जानता था? एड्स की बीमारी कोई नहीं जानता था। किस चीज की देन है? इसी इश्क व मोहब्बत की वजह से, इसी जिना की रविश की वजह से ये एड्स की बीमारी है। और दोस्तों इसी जिना के कल्चर की वजह से, बेहरा रवी के शिकार होने की वजह से माँ बाप, बच्चों की नजरों में माँ बाप का वकार खत्म हो जाता है, इज्जत खत्म हो जाती है। इस बेहरा रवी की वजह से, इस जिना में पड़ने की वजह से, इश्क व मोहब्बत की इस बीमारी की वजह से माँ बच्चों की नजरों में दोस्तों माँ बाप की अहमियत और कदर व कीमत खत्म हो जाती है। कदर व कीमत, अब आप गौर कीजिए कि इनके खानदान ने, इनके माँ बाप ने सदियों की मेहनत से जो नाम कमाया था, जो इज्जत मुआशरे में कमाई थी, शहर में कमाई थी, ये बच्चे इसी इश्क व मोहब्बत में पढ़कर, इस बेरा रवी का शिकार होकर माँ बाप की इज्जतों को सड़कों पे नीलाम करते हैं, सड़कों पे नीलाम करते हैं। हाय, इसे शर्म तक नहीं, इसे शूर तक नहीं, इसे हया तक नहीं कि हमारी बेरा रवी की वजह से, हमारे जिना की रविश पे चलने की वजह से हमारे माँ बाप मुआशरे में सर उठाकर चल नहीं सकते, हमारे घरों के अंदर घुट घुट के मर रहे हैं, घुट घुट के मर रहे हैं, और हमारा मुआशरा हमारे माँ बाप के ऊपर तबसरे कर रहा है। माँ बाप की कदर व कीमत चली जाती है। माँ बाप ने सदियों की मेहनत से जो नाम कमाया था, ये जिना के कल्चर में पड़ने की वजह से नौजवान नस्ल अपने माँ बाप के नाम को मिट्टी में मिला के रख देती है। और इसी इश्क व मोहब्बत की वजह से अज़दवाजी जिंदगी नाकाम है, मियाँ बीवी की जिंदगी नाकाम है। क्यों नाकाम है? शरीयत ने एक शर्त रखी थी निकाह के लिए, एक उसूल बताया था। क्या उसूल? कि निकाह के लिए दीनदारी को तरजीह दो, निकाह के लिए तुम अखलाक को तरजीह दो। फस्फर बिज़ात दीन तरिबत यदा, इमाम कायनात ने फरमाया तुम्हें जो देखना है देख लो, दीनदारी को देखना न भूलो, अखलाक को देखना न भूलो, सूरत के साथ सीरतों को देखना न भूलो। और आज ये इश्क व मोहब्बत करने वाले नौजवान, ये इस बेरारवी के शिकार जो इश्क व मोहब्बत कर रहे हैं, ये इश्क व मोहब्बत ने पढ़कर न दीन को देखा, न अखलाक को देखा, लड़की की सीरत को देखा ही नहीं, सूरत को देखकर उसे पसंद कर लिया, उसे निकाह कर लिया। न वालिदैन की रजामंदी शामिल, ना अल्लाह की रजामंदी शामिल। हाँ, एक लड़की माँ बाप को नाराज करते हुए, खानदान के बड़ों को नाराज करते हुए और अल्लाह को नाराज करते हुए, शरीय अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए एक लड़की वहां पर निकाह करती है जहां उसका दिल आ गया, उसी लड़के से शादी करती है जहां उसका दिल आ गया, लड़का उसी लड़की से शादी करता है जहां पर उसका दिल आ गया। अब आप मुझे बताइए, न माँ बाप की रजामंदी शामिल, न अल्लाह की रजामंदी शामिल, न खानदान के बड़ों की रजामंदी शामिल, ऐसे रिश्तों में बरकत कहाँ से आएगी? ये जिंदगियां खुशहाली के साथ कैसे कटेंगी? एक बात याद रखिएगा, ये जो रिश्ते जो निपटे हैं ना, ये सूरतों की बुनियाद पर नहीं निपटे, सीरतों की बुनियाद पर निपटे हैं। अरे ये सूरतों का नशा महीनों में उतर जाता है, सूरतों का नशा महीनों में उतर जाता है। बाकी रिश्तों में जो मजबूती आती है, जो इस्तेकाम आता है, वो तकवे से आता है, वो दीनदारी की वजह से आता है, वो नरम मिजाजी की वजह से आता है, वो मियाँ बीवी की उल्फत और मोहब्बत की वजह से आता है। और इश्क और मोहब्बत में पड़े हुए लोग कुछ नहीं देखते, सूरतों को देखकर निकाह कर शादी कर लेते हैं। और ये सूरतों की बुनियाद पर होने वाले निकाह, आपने सुना होगा 6 महीने में रिश्ता टूट गया, 1 साल में निकाह टूट गया। और अगर कोई निभा कर चला भी गया तो रोजीना के झगड़े, हाँ, रोजीना के टंटे और रोजीना की पंचायत। इश्क मोहब्बत की वजह से अज़दवाजी जिंदगी नाकाम है। और हज़रात, इस इश्क मोहब्बत की वजह से हमारी नस्ल क्या खोती है, खसारा कितना बड़ा है, क्या नुकसान उठाती है। इसी इश्क मोहब्बत की वजह से तालीम गई हमारी नौजवान नस्ल की, सेहत गई, तिजारत गई, माँ बाप का कमाया हुआ सरमाया गया। अल्लाह न करे, अल्लाह हमारे नौजवानों की हिफाजत करे, हमारे बच्चों और आने वाली नस्लों की हिफाजत करे। कभी कभार नाउज़ुबिल्लाह ये सुनने को भी मिलता है, इसी इश्क मोहब्बत के रास्ते से लड़की का दीन भी गया, लड़की का ईमान भी गया। क्या आप नहीं सुन रहे हमारे माशरे में
मुसलमान लड़का है गैर मुस्लिम लड़की के साथ रह रहा है, मुसलमान लड़की है गैर मुस्लिम लड़के के साथ रह रही है। और अल्लाह न करे नाउजुबिल्लाह कभी कभार ऐसा भी सुनने को आया है कि लड़का लड़की को पाने के लिए मुर्तद हो गया, लड़की लड़के को पाने के लिए अपने ईमान की कुर्बानी दे दी, मुर्तद हो गई, हिंदू हो गई लड़के को पाने के लिए। इसी इश्क और मोहब्बत के रास्ते से हमारी नौजवान नस्ल जो अपने दीन और ईमान को गंवा रहे हैं, अल्लाह की कसम ये वाकयात आप सुन और अगर पढ़ लेना रात की नींदें हराम हो जाएगी कि इनके माँ बाप अल्लाह को क्या जवाब देंगे कल कयामत के दिन, और हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। हमारी नौजवान नस्ल बेरारवी की शिकार होकर जो अपना दीन और अपने ईमान को गंवा रहे हैं। अपने आप लोगों से पूछता हूं, कौन है इन सारी चीजों का जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है? मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का टुकड़ा आप लोगों को सुनाकर बताता हूं कि इन सारी चीजों का जिम्मेदार कौन है। इमाम कायनात ने फरमाया वर्रजुलु राइन फी अहलिही व हुवा मसूलुन अन रायतिही, एक आदमी अपने घर का जिम्मेदार है, कल कयामत के दिन उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। आपने अपने बच्चों के लिए घर के माहौल को दीनी नुक्ते नजर से अपने बच्चों के लिए साजगार न बनाया, उसे शरई पर्दे के बारे में नहीं बताया, अम्मा आयशा और सहाबियात की सीरत उनको नहीं सुनाया, दीनदार नहीं बनाया, उन्हें दीनी तालीमात से नहीं जोड़ा, अल्लाह कल कयामत के दिन आप लोगों से पूछेगा कि तुम्हारी बच्ची जिस लिबास का तूने अपनी बच्ची को आदी बनाया था, जो उरिया लिबास है, जो नंगा लिबास है, और उसी लिबास की तुम्हारी बच्ची आगे आदी होकर आगे बढ़कर इश्क मोहब्बत के रास्ते से जो अपना ईमान जाय किया है, अल्लाह कल कयामत के दिन आप लोगों से पूछेगा। माँ बाप की जिम्मेदारी है हम अपने बच्चों पर एहतसाबी नजर रखें। हमारा बच्चा बैग लेकर जो स्कूल जाता है ना, बाहर निकल कर दोस्तों थोड़ा तहकीक करो, थोड़ा उसका पीछा करो। हमारी बच्ची जो निकल कर स्कूल और कॉलेज जा रही है, जरा हमारी लड़की की देखो कि सहेलियां कौन है, किस माहौल में हमारी बच्ची पढ़ रही है, हमारे बच्चे और बच्चियों के दोस्त क्या है, दोस्ती की बुनियाद क्या है, दोस्ती का मकसद क्या है, क्या तालीम की बुनियाद पर दोस्ती की है, हाँ क्या दीनदारी की बुनियाद पर दोस्ती की है, या नाउजुबिल्लाह कोई गलत मकसद तो नहीं है। जरा अपनी बच्चियों का पीछा करो, एहतसाबी नजर रखो अपने बच्चे और बच्चियों पर। और अगर मोबाइल में अपने बच्चियों को रिचार्ज करा के देते हो तो देखो कि पूरे महीने में आपके बच्चे और बच्ची ने उस रिचार्ज का इस्तेमाल कैसे किया है। गैर जिम्मेदार है वो बाप, गैर जिम्मेदार है वो भाई जो महाना अपनी बच्ची और अपने बच्चे को रिचार्ज तो करा के देते हैं लेकिन नहीं देखते कि हमारी बच्ची ने इस रिचार्ज का इस्तेमाल कैसे किया है, हमारे लड़के ने इस रिचार्ज का इस्तेमाल कैसे किया है। हम क्या समझते हैं, रूम बंद है, हमारा लड़का आराम कर रहा है, कमरा बंद है, हमारी लड़की आराम कर रही है। हाय, माँ बाप को नहीं मालूम कि हमारी लड़की तक एक लड़का पहुंचा हुआ है, हमारे लड़के तक एक लड़की पहुंची हुई है। कैसे पहुंची? वो कोई दरवाजे से नहीं आया है, वो कोई दरवाजे और खिड़की से नहीं आई है, सोशल मीडिया के जरिए से आई है। जरा दरवाजा खोल के देखो तो सही, वो चैटिंग कर रही है किसी से, हमारा लड़का किसी से बात कर रहा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों पर एहतसाबी नजर रखें। और वल्लाहि अज़ीम कहता हूं, अगर आप बचपन में अपने बच्चों की दीनी व अखलाकी तरबियत करते हैं, घर के माहौल को बच्चों के लिए दीनी नुक्ते नजर से साजगार बना देते हैं, सहाबियात की सीरत उनको सुना और पढ़ा देते हैं, उनके दिलों के अंदर बिठा देते हैं, अगर उन्हें शरई पर्दे का पाबंद बना देते हैं, ये बच्चियां कभी दोस्तों इस फितने का शिकार नहीं होगी, कभी इश्क और मोहब्बत का शिकार नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह आपकी बच्चियां दोस्तों पहचान ली जाएंगी जब पर्दा करके निकलेंगी, जब आप उनको शरई पर्दे के बारे में बता देंगे ना, जब ये बुर्का पहन के निकलेंगी ना तो कभी इनको परेशान नहीं किया जाएगा। सामने वाला कितना भी दोस्तों बड़ा हो, आवारागर्द समझ जाएगा कि ये शरीफ घराने की औरत है, ये शरीफ औरत है, कोई छेड़खानी नहीं करेगा। क्यों? बचपन में तुमने अपने बच्चों को शरई पर्दे का पाबंद बना दिया, इसीलिए कोई छेड़खानी नहीं होगी, पहचान लिया जाएगा। औरत छुपाने की चीज है, अरबी जबान में औरत कहते ही पर्दे को है। औरत दोस्तों जाहिर करने की चीज नहीं है, औरत छुपाने की चीज है। अगर ये औरत जाहिर हो जाए,
अगर ये औरत घर की चार दीवारी से निकलकर बे पर्दा बे लिबास होकर अगर सड़क पे आ जाए ना, ये औरत अगर बुर्का उतार देना तो इतना बड़ा फितना बन सकती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्रा लिर्रिजालि मिनन निसा, कि फिर ये इतना बड़ा फितना बन जाएगी अगर ये बुर्का उतार दे, चेहरे को खोल दे, तो जमीन पर मर्द के लिए इससे बड़ा फितना मैंने कोई नहीं छोड़ा। कितना बड़ा फितना है औरत, जानते हैं कितना बड़ा फितना। सईद बिन मुसय्यब का आपने नाम सुना है? किबार ताबई में से, बहुत बड़े ताबई हैं और इतने बड़े अल्लाह के वली, इतने बड़े मुत्तकी और इतने बड़े दोस्तों परहेजगार कि अब्दुल्ला बिन उमर सईद बिन मुसय्यब से कहा करते थे कि सईद, मैं तुम्हारे तकवे को जानता हूँ, मैं तुम्हारी इबादत को जानता हूँ, अगर आज मोहम्मद रसूलुल्लाह होते ना, सईद बिन मुसय्यब से कौन सहाबी कह रहे हैं, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदा होते तो तुम्हारे तकवे, तुम्हारी इबादतों को देखकर खुश हो जाते। ये सईद बिन मुसय्यब बताते हैं कि औरत कितना बड़ा फितना है मर्द के लिए। 80 साल की उम्र में सईद बिन मुसय्यब कहते हैं, लोगों अगर औरत का मैटर आ जाए, औरत का मामला आ जाए, अगर औरत का मसला आ जाए तो मुझ 80 साल के बूढ़े सईद बिन मुसय्यब पे भी भरोसा मत करना। औरत इतना बड़ा फितना है, इतना बड़ा औरत फितना, अगर ये बरहना हो जाए, अगर ये नंगी हो जाए, अगर ये बेलिबास हो जाए, अगर ये बेपर्दा हो जाए तो इतना बड़ा फितना बन सकती है। इसलिए शरीयत ने कहा कि औरत को छुपाओ, औरत छुपाने की चीज है। कुरान क्या कहता है? कुरान औरत के बारे में कहता है कि वला युब्दीना ज़ीनतहुन, औरतें अपनी जीनत को जाहिर न करें। क्या मतलब जीनत का? जीनत दोस्तों कई तरह की होती है। जीनत बदन की होती है, जीनत लिबास की होती है, जीनत जेवरात की होती है, जीनत आवाज की होती है, जीनत खुशबू की होती है। जीनत कई तरह की होती है। जब कुरान कहता है ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन, उसमें ये सारी चीजें आ गई। और आज हमारी लड़कियों का, हमारी घर की औरतों का जो पर्दा और बुर्का है, वल्लाह इसे बुर्का मत कहो, बुर्के का जनाजा कहो। ये पर्दे के साथ खिलवाड़ है, वो ये कुरानी आयात के साथ खिलवाड़ है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात के साथ खिलवाड़ हुआ जो आज हमारी घर की औरतों का बुर्का है। कैसा बुर्का है मालूम है? कहने को तो हमारी औरतों ने बुर्का पहन रखा है, लेकिन बुर्का खुद इतना पुरकशिश है कि इस बुर्के में 80 साल की बुढ़िया भी 20 साल की नौजवान लड़की लगने लगती है। इसको आप बुर्का कहेंगे? इसको आप पर्दा कहेंगे? कहने को तो हमारी घर की औरतों ने बुर्का पहन रखा है, लेकिन बुर्के के अंदर उसने जो फूल लगाए हैं, उसने जो खुशबू लगाई है, वो खुशबू जिस राह से वो गुजर रही है ना, उस खुशबू से तमाम मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जिह और रागिब कर रही है। इसे आप बुर्का कहेंगे? इसे आप शरई पर्दा कहेंगे? कहने को तो हमारी घर और मुआशरे की औरतों ने बुर्का पहन रखा है, लेकिन बुर्के के अंदर उसने ऐसा परफ्यूम लगाया है कि जिस गली से गुजर जाती है 5 या 10 मिनट तक वो गली मुअत्तर रहती है, महकती रहती है। इसे आप बुर्का कहेंगे? इसे आप शरई पर्दा कहेंगे? कहने को तो हमारी घर की औरतों ने बुर्का पहन रखा है, लेकिन ऐसा जेवर पहनकर जा रही है कि उस जेवर की झंकार से, उस जेवर की आवाज से वो मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जिह कर रही है, अपनी तरफ रागिब कर रही है। इसे आप बुर्का कहेंगे? हाँ, शरई बुर्का उसको कहते हैं जहां ये सारी जीनतें छुपती है ना, उसी को पर्दा कहा जाता है, उसी को बुर्का कहा जाता है। और दोस्तों जहां ये 5 जीनतें छुप जाएं, लिबास की, बदन की, जेवर की, आवाज की, खुशबू की, जहां ये 5 जीनतें छुपती है ना, उसी को कहा जाता है शरई पर्दा। और अगर आपने मुझसे पूछा है ना कि पर्दा कैसा होता है, तो ऐसा होता है पर्दा जहां पर ये 5 जीनतें आकर छुपती हैं। कुरान औरतों से कहता है, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों से मुखातबों के रब का कलाम कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि वलयज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन, औरतों को चाहिए कि अपनी ओढ़नियों को अपने गरीबानों पे दे मारे, गरीबानों पर अपनी ओढ़नियों को डाल लें। क्या पता चला कुरान की आयत से? अजनबी मर्द के सामने औरत को सर ढांकना भी जरूरी है, अजनबी मर्द के सामने औरत को गर्दन ढांकना भी जरूरी है, अजनबी मर्द के सामने औरत को सीना ढांकना भी जरूरी है। कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। यह है शरई पर्दा। ओढ़नी उमूमन
सी चीज का नाम होता है जो तीन चीजों को ढांक ले, सर को, गर्दन को और सीने को। कुरान कहता है वल यज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूब, औरतों को चाहिए कि अपनी ओढ़नी को अपने गरेबानों पे दे मारे। अजनबी मर्दों के सामने आए तो सर को भी ढांकें, गर्दन को भी ढांक लें और सीने को भी, इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से ढांक लें। यह है शरई पर्दा। आगे इसी सूरह नूर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन। क्या कहता है रब का कुरान कि औरतें जब चले तो चलते हुए जो पाजेब उन्होंने पहनी है, पैरों इस तरह मटक मटक कर न चले, पैरों को जमीन पर इस तरह पटक पटक कर न चले कि उन्होंने जो पाजेब पहनी है, उन्होंने जो जेवर पहना, वो जेवर इस तरह आवाज कर रहा है कि वो अपनी जेवर की आवाज से मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मटक कर चलने की। क्या पता चला कुरान की आयत से कि नाजायज है औरत के लिए ऐसा जेवर, जो जेवर उसकी बेपर्दगी का सबब बने, जिससे आवाज पैदा होती हो, जिस आवाज से मर्द उस औरत की तरफ मुतवज्जे और रागिब होती हो, ऐसा दोस्तों जेवर औरत के लिए नाजायज, ऐसा जेवर औरत के लिए नाजायज है। और यहां पर दोस्तों हट के ये चीज भी कह दूं कि कुछ औरतें जेवर पहनती भी हैं तो दोस्तों तकब्बुर के जज्बे के साथ, घमंड के साथ, हालांकि पड़ोसी से मांग कर किसी तकरीब, शादी ब्याह की तकरीब में पहन के जाती हैं, लेकिन तकब्बुर और घमंड के जज्बे के साथ कि आज मैं फलां तकरीब में जा रही हूं तो दिखाऊंगी कि मैं किसकी बीवी हूं, किसकी बेटी हूं। हज़रत अबू हुरैरा अपनी बेटी से कहा करते थे या बिन्ती ला तलबस ज़हब फ़इन्नी अख़शा अलैकल लहब, मेरी बेटी दुनिया की औरतें जेवर पहनती हैं, पहनने दो, तुम मत पहनना, मुझे डर है कि कल कयामत के दिन ये जेवर तुम्हारी आग का शोला न बन जाए। क्या मतलब? हालांकि औरत जेवर पहन सकती है, औरत जितना सोना चाहे पहन सकती है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस हदीस का एक मतलब तो ये हुआ कि ये वो बाप थे जो अपनी बच्चियों की दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र कर रहे थे, और मुहद्दिसीन कहते हैं कि इस हदीस का दूसरा मतलब ये हुआ कि औरतें जेवर जरूर पहने, लेकिन अगर तकब्बुर के जज्बे के साथ पहना है कि दिखाना चाहती है कि मैं किसकी बीवी और किसकी बेटी हूं, तकब्बुर के जज्बे के साथ अगर जेवर पहना है तो यही जेवर मेरी माँ और बहनों कल कयामत के दिन तुम्हारे लिए आग का शोला बन जाएगा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया शरई पर्दा यह है कि औरतें जो जेवर पहना है मटक मटक कर न चले कि उन जेवरों की आवाज से मर्दों को अपनी तरफ रागिब करें। आगे दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखा जाए तो औरतों की खुशबू भी पर्दा है, औरतों की खुशबू का भी पर्दा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्न तीबर रिजाल मा ज़हरा रिहु व खुफिया लौनुहु, और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया वतीबुन निसा मा ज़हरा लौनुहु व खुफिया रिहु। आपने फरमाया मर्दों की खुशबू में महक होनी चाहिए, रंग नहीं होना चाहिए, लेकिन औरतों की खुशबू में रंग होना चाहिए, महक नहीं होनी चाहिए, महक नहीं होनी चाहिए। औरतों की खुशबू ऐसी हो कि सिर्फ रंग नजर आए, उसमें महक नहीं होनी चाहिए। रंग पर, खुशबू पर रंग गालिब होना चाहिए। पहले जमाने की औरतें क्या लगाया करती थी खुशबू के तौर पर? जाफरान लगाया करती थी। खुशबू उसमें कम होती है, रंग ज्यादा होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया औरतों के पर्दे के लिए चीज जरूरी है कि उसकी जीनत छुप जाए, वो ऐसी खुशबू लगाए जिसमें रंग हो, खुशबू कम हो, उनकी खुशबू पर रंग गालिब आना चाहिए। तो कहा कि औरतों की खुशबू जाफरान जैसी चीज होनी चाहिए, रंग होना चाहिए, उसमें खुशबू, उसमें महक कम होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों औरतों की अगर देखा जाए ना, आवाज का भी पर्दा है, औरत की आवाज का भी पर्दा है। क्या मतलब? रब का कुरान कहता है फला तक्साना बिलकौल फयतमल्लती फी कल्बिही मरद व कुल्न कौलन मारूफा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर अज़वाज मुतहरात को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियों को मुखातब होकर कहा, उम्महातुल मोमिनीन को, कि अगर किसी अजनबी मर्द से बात करने की जरूरत पड़ जाए, औरत जरूरत के तहत अजनबी मर्द से बात कर सकती है, लेकिन सिर्फ जरूरत के तहत, वैसे नहीं। बात कर सकती है, लेकिन शर्त रखी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। क्या शर्त रखी? कि फितरी आवाज में बात न करे, नाजुक लहजे में बात न करे, औरत की जो बारीक आवाज है उस आवाज में बात न करे। फरमाया फला तक्साना बिलकौल, बात तो कर सकती है जरूरत के तहत, चाहे फोन पर बात करे या अजनबी दरवाजे के उस पार खड़ा है, बात तो कर सकती है। शर्त क्या लगा दी? फला तक्साना बिलकौल, लहजे में सख्ती पैदा करे। हाँ, लहजे में सख्ती पैदा करे, और औरत इस लहजे में बात करे कि अगर फोन पर भी बात कर रही है या अजनबी दरवाजे के बाहर खड़ा है, उसे ये गुमान हो औरत की बात से कि पता नहीं बेचारी क्यों गुस्से में,
बात से उसे ऐसा गुमान हो कि पता नहीं बेचारी क्यों गुस्से में, लगता है गुस्से में बात कर रही है, तो अपने लहजे में सख्ती पैदा करे। अगर औरत नाजुक लहजे में बात करेगी, फितरी अंदाज में बात करेगी, जिस तरह उसकी आवाज है उस आवाज में अगर बात करेगी, तो रब का कलाम कहता है फयत्मा अल्लती फी क़ल्बी मरज़, जिनकी दिलों में मर्ज है ना, जिनकी सोच घटिया होती है, इस औरत की आवाज उनके दिलो दिमाग में इस तरह बैठ जाती है कि वहीं से फिर इश्क और मोहब्बत की बीमारी के ये लोग शिकार हो जाते हैं। बहुत बड़ा दोस्तों फितना पैदा हो जाता है यहाँ से। तो जरूरी है कि अपनी आवाज जब मर्द अजनबी मर्दों से बात करें तो नरम लहजे के साथ बात न करें, अपने लहजे में सख्ती पैदा करें।